मेजोरिटी टाइम शूटिंग जो दिवाली का स्पैन जहाँ पे हर कोई अपने फैमिली के साथ होता है, मैं कहीं ना कहीं सेट पे शूटिंग करता रहता हूँ। पैशन है और करना ही है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा बेसिकली। कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ छूटेगा। So hey guys, we are back with the third episode of Pep Talks with Parth. Today we have with us someone who's worked as production assistant, production manager and unit production manager in films like Wazir, Fugre Returns, Phobia, Panga, Kesari and Dil Bechara, which was the last film for Sushant Singh Rajput. And I have known Aditya since last 6 to 7 years now. बट वो कभी मिलना जुलना हुआ ही नहीं बिकॉज ही वॉज मोस्टली आउट ऑफ द टाउन, मतलब बाहर घूमना उसका चलता रहता है। हंस क्या रहे इतना, ठीक है, मतलब अभी घूम रहे तो। So finally, due to the lockdown, we have Aditya Gandhi on the show. Welcome to the show. Welcome. ये हो चुका है, ठीक है। Welcome to the show, Aditya. He's been working with like n number of directors and producers and production houses like Vinod Chopra Productions, Foxstar Studios, Excel Entertainment and Dharma Productions as well. सबको कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार पिक्चर में काम करना है, कुछ भी रिलेटेड ऐसा पिक्चर में बस काम करना है कि मूवी स्टार के साथ काम करना, उठना बैठना ऐसा वैसा। सो लाइक हाउ वाज इट विद यू, हाउ डिड ऑल स्टार्ट? It started basically post my 12th. So I chose a stream which is known as a Bachelor of Mass Media. So initially my main motive for BMM was just, it was a only course where there is मैथ्स अकाउंट्स नहीं है, जहाँ पे मैथ्स मैथमेटिक्स नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, ओसी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, दुनिया के जो रट्टे मारने वाले सब्जेक्ट है वो कुछ नहीं है, सिर्फ क्रिएटिव सब्जेक्ट है। करेक्ट। जो मेरे को था कि भाई ये करते हैं। हाउ डिड यू गेट इनटू फिल्म्स? So I got into a internship. It was a internship for one of the telesoap, which is name is Savitri. It used to be broadcasted on Life OK channel. First, my knowledge on the direction as well as the production got improvised on serial. How the serial function out. There was a guest lecture in my college, which was done by Bijoy Nambiar. Okay. Bijoy Nambiar is a first director in the Bollywood who invented a concept of slow motion. If Like slow motion. anyone want to see watch Shaitan film in a particular song Hawa Hawai, it has all the shots which are in the slow motion. From that I had a contact number of Bijoy Nambiar with me. Okay. TY exam got over and the first thing what I did was I came out like usually post exam people called up their friends and they said finally TY खत्म हो गया. They call up their parents, exam अच्छा गया, ये हो गया, मैं निकल रहा हूँ, ये वो. But the first thing, what my passion was of the filmmaking, I called up Bijoy. I called him and I told him that I want to do production and I want to work with you. And he told me that your exams, I told him that exams are all over. I just gave my last paper at 5:30, it got over. And भाव दिया ऐसे मतलब? So first it was, he sounded like something rude, but later on like conversation होता गया within 5 minutes of time. He told that one of my production person or maybe my company representative will get in touch with you. So I was like, okay. And like 10:30 in the morning, I got a call from Priyesh Kaushik. He is an executive producer for Bijoy Nambiar. Okay. So he called up. He told that you spoke to Bijoy and he want to meet you up. We want to meet you up. I came. I met them. And I remember the first thing what my Priyesh sir asked me was, "Do you have a passport?" Nothing related of sort of what have you done. He just saw that Bijoy has called you. And he has your resume, you have a passport or not? I said no. He told apply for it and I was the part of the working team of it. So from there it started working with Bijoy and then we started off with the film named Wazir. So that was Wazir the first film. also, yeah, but Wazir was technically like 70% of the film what we shot Wazir was technically named as Ek Aur Ek Do. Okay. Later on the stage where it got into completion and the marketing and all, the name was derived as Wazir. Okay. So that's like how it all started. Yeah. So what do you do basically? So people don't know what like production guys do. तो किसी को लगता है कि डायरेक्शन में है, असिस्टेंट है, कुछ करता होगा. Production What is the person. exact job that you do? Production person is kind of a HR, what we see in a corporate agency. पूरे पिक्चर लहंगा करता जो होता है वो एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है. Okay. He is the one who get in touch with cameraman, what director wants. He is the one person तो who gets सबको in. जमा करता है Yeah, सबको he'll collaborate with everyone, he'll coordinate with everyone, then he'll hire
different people like production manager, line producer will take forward from him. So that's And the then level the- you're working with them. That Yeah, matlab- so 6 or 7 HODs will sit and make the plan, but for the execution they require a production person. so you work with So I them, work the production yeah, team. so I work closely with the executive producer as well as the producer with the director. That for this scene this amount will be spent, for this scene this much amount will be spent. And first most thing most important is making a budget. So budget is basically if a producer wants to spend 20 crores, how that 20 crores will be spent and will be given to each and everyone. What my main work is, first important thing is I make a budget with my producer. Second that comes the director, production designer or producer demands, or the cameraman. Mainly it's director, producer and the cameraman who demands that what type of actors they are looking at. What will be the color palette, what will be the actors they are looking at. Okay. So on basis of that, they'll give a list of actors. For example, like 4 to 5 actors. So we'll get in touch with the manager, check out the availability, what are the things. We'll share across the script, which is with the watermark. Watermark is basically a script on which the person whom we are handing over the script, his name is mentioned on it. So in case if there is any breach or if that script get leaked over, it can be easily identified that the किसने script leak was किया? handed over to whom and from where there is a fault. Okay. फिल्म मेकिंग में सबको यही लगता है कि डायरेक्टर एक इंपॉर्टेंट होता है, प्रोड्यूसर एक इंपॉर्टेंट होता है, आर्ट इंपॉर्टेंट होता है, बट डीए भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो डायरेक्टर का एक असिस्टेंट होता है. हर चीज़ आर्ट डायरेक्टर ये टाइम पे ये मीटिंग है उसकी, ये टाइम पे ये मीटिंग है, सर मैम ने ये बोला था, सर ने ये बोला था, ये वो चीज़ वो काम जो डायरेक्टर का एग्जीक्यूट करता है वो एक डीए होता है. Okay. Then a line producer, first AD, production designer, me, myself, my producer, all we see different type of a location what are required for the film. Recce basically. First is we sort down all the location what like script में लिखा हुआ है कि पहाड़ वाला I'll tell you चाहिए। one incident. When I was doing a film Kesari, so Kesari is like a battle story which was of like 1870 or 1890s, if I'm not wrong. And what my director Anurag demanded was he required a tabletop, and on each side of the tabletop there should be a mountain. Tabletop as in? Tabletop is a flat land. Okay. Tabletop is basically a flat land, and on the each side of the tabletop there is a mountains. Okay. And we went to many parts of Maharashtra. We took drone because this kind of a location are not easily available. It are like we climbed up many mountains. We use drone, and then we come to a point that this kind of a location is there somewhere around. तो कहाँ पे शूट किया मतलब? So we shot it at the place which is known as Vathar. It's like close by near to Vai and Mahabaleshwar, which is in Maharashtra. Okay. तो बेसिकली लोकेशन ढूंढना, उसका परमिशन लेना, लोकेशन ढूंढना, सब तुम्हारा मतलब. लोकेशन ढूंढना, लोकेशन का परमिशन कराना, लोकेशन जो लोकल लाइन प्रोडक्शन होता है उन सबको पूछना, उन सबका लोकल लाइन प्रोडक्शन इन द सेंस द पीपल हु विल बी वर्किंग लोकली. लाइक मैं अगर किसी के गांव में जा रहा हूँ तो कोई सरपंच मुझे एंटरटेन नहीं करेगा, वहाँ के बट लोकल. मैं एक लोकल आदमी रखूंगा जो उससे बात करेगा. करेक्ट. सो वो लोकल को आइडेंटिफाई करके लोकेशंस को लॉक करना, परमिशंस करना, उनके परमिशन एज एन एवरीथिंग, द लीगल परमिशन आर इन्वॉल्व, फायर परमिशन, every permission, police permission, fire permission, sarpanch permission, the collector permission is involved, clearing all that permission. So basically production का दूसरा भी ये काम होता है, कोई भी आदमी जो सेट पे आए, कोई भी XYZ को हो, उन सब को कहाँ उनका खाना होगा, कहाँ रहना होगा, कहाँ उनकी लॉन्ड्री होगी, जो उनकी बेसिक एमिनिटीज है वो सारी हमें उनको पूरी करके देनी है. समझा. सो लोगों को ऐसा काफ़ी लगता है कि भाई पिक्चर में काम करो तो ग्लैमर है, मज़े है, ये है वो है. सो हाउ ट्रू डू यू थिंक इज दैट कि मतलब एक तो पहली बात कि घुसना कितना डिफिकल्ट है फिल्म इंडस्ट्री में, कि आप कितना इजी है, और अगर जाने के बाद कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है या कितने एफर्ट डालने पड़ते हैं यहाँ पे फिल्म मेकिंग के लिए मेन इज अ पैशन. फिल्म लाइन में बेसिकली इफ यू आर, अगर पैशन है आपको फिल्म के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका मतलब माइंड सेट है, आपका हार्ट स्ट्रेट है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है और आपको एंटरटेनमेंट के लिए ही काम करना है, आपका एक माइंड सेट हो गया है कि कुछ भी हो जाए, देन एवरीथिंग इज ईजी. बट टू गेट टू दैट लेवल देयर इज अ वे स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है. आई रिमेंबर इन माई स्ट्रगलिंग डेज 12 बजे मैं काम से ख़त्म होता था और सुबह 5 बजे वापस भी आना होता है.
एंड इफ आई शूटिंग इन द टाउन मतलब CST साइड में, सो इट मेक नो सेंस कि मैं ट्रेन पकड़ के 1:30 बजे घर आओ, सुबह 4 बजे वापस आओ। और वो 5 घंटे के लिए ये भी होता था कि अगर मैं कोई होटल बुक करूँ तो इतनी तो सैलरी थी नहीं तभी कि मैं 5,000-6,000 टाउन में पे कर दूँ। तो मैंने मरीन ड्राइव पे भी सोया हूँ मैं, फुटपाथ पे, और सेट पे भी सो गया हूँ सिक्योरिटी के साथ में। सुबह 4 बजे अलार्म हुआ, बेस वगैरह सब सेट करो, शूट। बट ये पॉइंट मैंने कभी ये सेक्रीफाइस नहीं किया, मतलब ये मेरे माइंड में नहीं आया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब 12 बजे सो रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ सो जा रहा हूँ या मैं मरीन ड्राइव पे सो जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं ये सब चीज़ें। बट मेरा एम स्ट्रॉन्ग था कि मेरे को फिल्म मेकिंग करना है। घर वालों का क्या मतलब वो था कि ऐसा यार क्यों ऐसा करना है, अपना बिजनेस कर लो ऐसा? ये बहुत मेरे लिए बीइंग इनटू, बिकॉज व्हाट आई नो अबाउट आदित्य इज कि उसकी मतलब अगर अभी कितना 11-12 बजेगा थोड़ी देर में, तो his family will start calling कि आदित्य बेटा क्या है, घर आ गई यहाँ से। So didn't that happen like it happened on my first film which was Wazir. So post completion of Wazir my parents were like why are you doing all this, and like in Gujarati, a typical Gujarati family તું કેમ કરે જાવ, તારા પપ્પાનો જો કેટલો મસ્ત બિઝનેસ છે, તારા પપ્પા રોજ 11 વાગે જાય 7 વાગે આવી જાય, નાગદેવીમાં આપણો આટલો સરસ ધંધો છે, તું કેમ મારો લાલ આવો કરે છે, સેટરડે સન્ડે છુટ્ટી હોય, like all this were like questions they were asking me कि तू छोड़ दे, why you want to do, but like post Fukare Returns when it was completed, and the thing was like on Fukare Returns there was a premiere for Wazir or Phobia. My parents were not called, but Fukare Returns my parents were called. So when they saw when they came, and then the way actor, the director, producer interacted with them, and they told, and they were none of them were like Aditya, they all were like Adi. अरे हाँ हम आदि को जानते हैं, अरे आप आदि के मॉम डैड हो, अच्छा अच्छा, and then later on they got used to it, and still there are the times like मैं रात को डिनर कर लेता, उसके बाद ही मेरी मम्मी करती है। वंस आई मेक अ कॉल इन माई रात में मॉम को कि हाँ मैंने खाना खा लिया, उसके बाद ही मेरी मम्मी पापा खाना खाते हैं। पर इसके अलावा भी ऐसी मतलब ऐसा कभी हुआ है कि पिक्चर के काम में बेसिकली कहीं पे बिजी हो, या कोई किसी का बर्थडे अटेंड ना कर पाओ, स्पेशल ओकेजन्स, तुम मम्मी पापा का बर्थडे हो अटेंड ना कर पाए, ऐसा कुछ? डेफिनेटली, लाइक इन पास्ट 5 years ऑफ स्पेंड आई हैव वेरी मेजॉरिटी टाइम शूटिंग, जो दिवाली का स्पेंड जहाँ पे हर कोई अपने फैमिली के साथ होता है, मैं कहीं ना कहीं सेट पे शूटिंग करता रहता हूँ। सब मुझे दोस्त फ़ोन करते कि माइंड स्पेस पे आ जा, फटाखे फोड़ते, ये करते, बट मैं वो टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसा ऑक्यूपाइड होता कि मैं उनको कुछ जवाब ही नहीं दे पाता हूँ, ना हाँ बोल पाता हूँ ना बोल पाता हूँ। बहुत बार तो ये भी होता है, मतलब आपका माइंड सेट होना चाहिए और हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पैशन है और करना ही है। कुछ ना कुछ तो छूटेगा बेसिकली, कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ छूटेगा। नवरात्रि स्किप होती है, दिवाली स्किप होती है, क्रिसमस स्किप होती है, दोस्तों के बर्थडे स्किप किए, यहाँ तक कि कजिन के शादी भी स्किप कर दिया मैंने। कजिन मतलब फर्स्ट कजिन, जिसका मतलब चाचा का लड़का या मासी का लड़का, उन सब की शादी छोड़ दी है, जस्ट विद वन मोटिव कि मेरे को ये स्क्रिप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, ये 1 साल बाद मेरे घर वाले ने, मेरे दोस्त ने, पूरा वर्ल्ड देखेगा और सब ताली बजाने वाला है। सो मैं वो एम से ही चलता हूँ और वही सब काम करता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेसिकली अभी कैसा होता है, काफ़ी सारी पिक्चर में काम किया, तो कभी लखनऊ, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, कभी कहीं, तो लैंग्वेज बैरियर होता है कभी कभी मेंटली वो हम जो समझाना चाहते हैं, मतलब जो काम निकलवाना चाहते हैं उनसे, वो उनको समझ में नहीं आता है। हाउ डू यू कम्युनिकेट एंड गेट द वर्क डन, like getting the shit done in the different state where you don't know anyone? How do you manage that? It's a very tough job. Like जो अपनी टंग का है उससे कम्युनिकेशन एकदम इजी हो जाता है, बट एट द सेम टाइम जब हम वर्कर से बात करते हैं, उनसे काम भी निकलवाना है, सब चीज़ है, प्लस उनका सब चीज़ वर्क होता है शिफ्ट के हिसाब से। बट एट द सेम टाइम अगर मैं उसे पैसे दे रहा हूँ तो मैं भी सुबह देखूंगा ये चीज़ की क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे अभी मैं दिल बेचारा की शूटिंग करके रांची में गया था, सो रांची का पूरा शूट, रांची जमशेदपुर वॉज वेरी स्मूथ, कि वहाँ के लोगों को आप अगर कोई वहाँ के नहीं कहीं के भी लोग को आप रिस्पेक्ट से बात करो, अगर आपको उसका नाम है उसको बराबर से नाम दो और उसको एकदम प्यार से बताओ चीज़ें, 100% चीज़ होती है। और अगर आप वही सेम चीज़, फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम रवि है, आप रवि जी एक काम कर दीजिए, वो इजीली काम आपका हो जाएगा। बट आप अगर बोलोगे ये रवि काम कर दे, तो वो जो टोन आ जाएगा तो उससे चीज़ें बहुत अफेक्ट होगी। सो मैं एज ए प्रोडक्शन में, मतलब मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा, मतलब 3-4 पिक्चर करने के बाद हो जाता है, थोड़ा बहुत ईगो भी आ जाता है
मतलब पर्पसली ऐसा नहीं चाहता था मैं, बट हो जाता है ऐसा एक हवा में इंसिडेंट। उड़ने लगता है इंसान थोड़ा। हवा में उड़ना नहीं बोल सकते, बट ऐसा ईगो आ जाता है, मतलब यार मतलब मैं इन सब के साथ काम, जैसे पहली पिक्चर में बच्चन सर थे, फरहान, जॉन, नील, सेकंड फिल्म में राधिका आप्टे, थर्ड फिल्म में सारे फुकरे पुलकित सम्राट वाले लोग सब थे, दिल बेचारा में सुशांत। तो ये हो जाता मतलब यार मैं सब लोग इन सब के साथ रह रहा हूँ, तो ये तो मैं एक फिल्म का नाम नहीं दूंगा, बट मैं फिल्म का परमिशन कर रहा था, लीगल परमिशन, और मैं कॉप से पास चला गया, और वो मतलब मैं उनके साथ परमिशन ले रहा हूँ ये चीज़ है, तो उन्होंने चाहा अटकाने के लिए, तो मैं उनको बोल दिया यार ये तो तुम जो आपसे होता है कर लो, लेकिन मेरे को परमिशन चाहिए, मैं तो ये करके ही रहूँगा। तो वो बात उनकी ईगो पे आ गई, मतलब उसके ईगो पे आ गया। हाँ, उसका ईगो हर्ट हो गया और मेरा ईगो अपग्रेड हो गया कि मतलब मैं यार इन लोग के साथ क्या काम कर बोल रहा के हूँ। आया देगा। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ ये वो, बट लेटर ऑन वो पेपर वहीं अटका रहा, हुआ ही नहीं। और कल जैसे शूट है और मैं आज मांगने गया, बोलता है बात कर, तू किससे बात कर रहा था? और मेरी ऐसी फटी वाला यार ये तो यार सीन हो गया है, अटक गया काम, मतलब उसने अटका दिया बेसिकली। हाँ करेक्ट, उसने अटका दिया। और कल शूटिंग है, मतलब सब लाइनअप हो गया है, सब चीज़ें हो गई, और हम लोग एक दूसरे लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, जो खत्म होने के बाद दूसरे पूरा यूनिट वहाँ पे रात को सेटअप होगा, और दूसरे दिन से परमिशन shooting नहीं होगा। मिला अभी। और उसका परमिशन नहीं मिला, और मैं यहाँ पे मेरे सीनियर्स को ये बोल रहा अरे हो गया परमिशन, मैं तो लेने गया हूँ, वहीं बैठा उनके साथ, यहाँ उनको मना रहा हूँ, मान ही नहीं रहे। फिर इसको फ़ोन किए, उनको फ़ोन किए, जितने लोग के मैंने उनको नाम दिए थे उन सबके फ़ोन किए, उन सब ने उनको फ़ोन किए, वो नहीं माने। और जब मैंने लास्ट में सॉरी बोला ना, तो उन्होंने बोला बस ये बात मैं 3 घंटे पहले बोल दी होती तो तेरे को मैंने लेटर दे दिया होता। मतलब कुछ भी कितना ही बड़ा हो जाए, नॉर्मल टोन से बात करेगा, हर अच्छे से अच्छा चीज़ होगा। ईगो में बात करेगा तो कुछ नहीं होगा। और वो दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, और उस दिन से मैं आज तक तो थैंकफुली किसी से ऐसा ईगो में बात नहीं किया हो, सबके साथ। लाइक बेसिकली कितने भी बड़े हो जाए एकदम डाउन टू अर्थ रह के अगर बात करोगे तो काम हो जाएगा। कुछ भी काम निकलवाना है प्यार से बोलो, रिस्पेक्टफुल से बोलो, 100% काम होगा। और कुछ भी हार्श टोन में बोल दिया, कुछ भी ईगो लेके बोल दिया तो कुछ भी नहीं होगा। नाइस। सो यू हैव बीन वर्किंग विद लाइक 5-7 years इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब अभी एक चीज़ नॉर्मल हो गई है कि भाई बच्चन साहब बैठे हैं यहाँ पे, तुम यहाँ पे बैठे हो, कभी कंगना रनौत जी पास हो रहे हैं, कोई कभी कौन किसके साथ, फरहान अख्तर, कभी आजू बाजू मतलब घूम रहे सब फिल्म स्टार आजू बाजू रह रहे हो, बट तो अभी आदत पड़ गया होगा, बट स्टार्टिंग में या ऐसा कभी होता है कि यू गेट स्टार स्ट्रक, मतलब जाके यार फोटो खींचाओ इनके साथ बात करने में, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा कब हुआ नहीं है, जब बेसिकली मैं ऐसा तो एक सेकंड बहुत एक ऐसा तो हुआ रहेगा कि भाई लोग बोलते होंगे अरे यार आदि सलमान खान से मिला दे, इससे मिला दे, ये वो तो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, पर ऐसा लाइक हैव यू फेल्ट लाइक दैट? या सो मतलब बेसिकली जब मैं टीवाई कंप्लीशन पे था बीएमएम के, जब मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैं फिल्म मेकिंग करूँगा या फिल्म बनाऊँगा, सो मैंने ऐसे ड्रीम रखा था कि मैं कुछ भी हो जाए एक बार मैं बच्चन साहब के घर पे जाऊँगा, फरहान सर के घर पे जाऊँगा, इनके घर पे जाऊँगा, इनकी बेसिकली लाइफस्टाइल देखूंगा ये वो। तो वजीर के टाइम पे तो ये सब चीज़ पूरे हो गए, जितने मेरे ड्रीम थे सारे देखने सारे पूरे हो गए। एक तो इंसिडेंट ऐसा था मेरे साथ, जब मैं वजीर की शूट खत्म हो गई थी, अप्रॉक्स कुछ अराउंड 65 डेज कंप्लीट हो गया था, और मैं एक फ्रेंड के साथ अंधेरी लोखंड वाला गया था। और वजीर के टाइम पे ये था मतलब इस सारे स्टार्स को मिल लिया, तो मेरे को अरिजीत सिंह को सुनना है लाइव एक बार कभी, और कभी ऐसे मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कोई इंसिडेंट होगा। सो मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ लोखंड वाला सर्कल पे था, और मेरा फ्रेंड ने वहाँ से बूस्ट और स्मोक ली। मैं फिल्म लाइन में होके भी स्मोक नहीं करता, ड्रिंक कुछ नहीं। सो अपना सिंपल बूस्ट वाले के पास से, अन्ना के पास से बूस्ट लिया मैंने, और मेरा दोस्त सूटा मार रहा था उस पॉइंट पे, तो हम दोनों वहाँ पे ही फुटपाथ पे बैठे हुए बात कर रहे हैं। जस्ट बाजू में दो बंदे आए, जो मेरा दोस्त सूटा मांगा था उसके पास उसने लाइटर मांगा, एंड दैट वाज अरिजीत सिंह। बट वो भी लाइटर मांगा? हाँ, बट वो भी सिगरेट नहीं पीते, उन्होंने अपने कोई फ्रेंड के लिए लिया था, जो पास कर दिया। और मेरे सामने ऐसा लगा था कि मैं कोई ड्रीम दिख रहा होगी, मतलब अरिजीत सिंह मेरे सामने खड़े हैं, उनके दोस्त थे, वो मेरा दोस्त है ये। फिर मेरी उनसे कम्युनिकेशन हुई, बात हुई, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी एक्सचेंज किया, और वो 5 मिनट ऐसे लाइफ चेंज हो गई। मतलब ऐसा हो गया रात को, वो भी रात को 1:30 बजे वो फुटपाथ पे, और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये चीज़ होगी, बट वो हो गई। 2 ड्रीम बाकी थे। इट वॉज टू मीट MS धोनी। सो व्हेन आई वाज शूटिंग दिल बेचारा इन जमशेदपुर से हम शिफ्ट होकर रांची आए थे, एंड रांची में कुछ 6 दिन का शूटिंग था हमारा।
और जब हम लोग एक सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, अगर आपने दिल बेचारा देखी है तो दिल बेचारा में एक सीन है जहाँ पे मैनी की एंट्री होती है, सुशांत की एंट्री होती है संजय कॉलेज में, रेड कलर का स्ट्रक्चर है, दैट वाज रांची सेंट जेवियर स्कूल। वो स्कूल के अंदर हमने शूट किया था। द थिंग वहाँ पे मुझे जो मेरे लाइन प्रोड्यूसर थे उनका नाम है संजीव वर्मा। सो संजीव वर्मा इज बेसिकली अ लोकल पर्सन फ्रॉम झारखंड इटसेल्फ। और जिसको भी झारखंड में आके शूट करना है, दे हैव टू गेट इन टच विद संजीव एंड गेट द वर्क डन। तो संजीव भैया माही को एकदम अच्छे से जानते हैं और उन्हें पता था कि यार आदित्य को MS धोनी बहुत पसंद है। सो उन्होंने मेरे हेड ऑफ प्रोडक्शन खड़े थे जो भी फिलहाल नेटफ्लिक्स में है, उनका नाम है पार्थ अरोरा। मैं पार्थ सर आगे बढ़ ही जाते हैं। पार्थ अरोरा सर थे, मैं था, मेरी और एक मेरी लाइन प्रोड्यूसर थी आनंदिता सरकार और संजीव भैया। और उनके सामने इन्होंने टॉपिक छिड़ा कि यार धोनी आया हुआ है, आदित्य वापस आया न्यूजीलैंड से और आज आने वाला है क्लब में। सो मैं से एकदम एक्साइटेड हो गया कि यार मतलब रांची आया हूँ मैं यहाँ शूटिंग करने के लिए और धोनी से नाम मिलो, यार ऐसा नहीं हो सकता। संजीव भैया ने बोला ठीक है, और उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को बुलाया और बोला जाए इसको क्लब में लेके जाओ और माही से मिलाता है। सो वो पॉइंट तक मैं ऐसा लग रहा था कि मतलब ये कुछ फेक ही हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट जब मैं क्लब के गेट पे पहुंचा, उनकी गाड़ी देख के सिक्योरिटी ने भी छोड़ दिया, बोला संजीव भैया की गाड़ी आई है। तो मुझे लगा यार मतलब मैं मेरे ड्रीम के करीब जा रहा हूँ, मतलब कोई इतना बड़ा, एंड दैट वाज अ क्रिकेट स्टेडियम, रांची क्रिकेट स्टेडियम। उसके पिक्चर्स बहुत सारे मेरे पास है और वो स्टेडियम पे कोई पूछ भी नहीं रहा क्योंकि संजीव भैया की गाड़ी है तो जाएगी अंदर गाड़ी। अंदर गया, अंदर जाके जहाँ हमारी गाड़ी रुकी, मैं वहाँ से उतरा और सामने ही हमर गाड़ी खड़ी थी। हमर जनरली मैंने देखी है कि हमर के दोनों साइड में हमर के लोगो होते हैं, कार के लोगो होते हैं, बट इन द ऑनर हमर ने MS धोनी के लिए MSD लिखवाया हुआ है। कहाँ पे? टायर पे? गाड़ी के दोनों साइड में, अच्छा हाँ समझा, दोनों साइड गेट पे इट इज MSD। वो मेरे को लेके गए जहाँ पे मैं देख रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी एक्सरसाइज कर रहा है। अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स में उनको सिर्फ देखता रहा। वो इतने पैशनेट थे कि उन्होंने देखा भी नहीं कि ऐसा कोई फैन दिख रहा है उन्हें। मैं 4 घंटे सिर्फ उनको देखता रहा और वो एक्सरसाइज करते रहे। पोस्ट दैट वो वहीं पे ऊपर बिलियर्ड्स खेलने गए अपने दोस्तों के साथ, मैं वहीं पे भी बैठा रहा, देखता रहा माही को। जो माही के लिए मैंने सोचा था मैं एक सेल्फी लूँगा, उस माही को मैं 5 घंटे तक देखता रहा। उसके बाद जब उनकी गेम खत्म हुई, बाहर आए, मैंने उनसे सेल्फी ली, उन्होंने मेरे को सेल्फी भी दी, बहुत ही हम्बल थे। फिर मैंने उनकी ब्लेसिंग ली। बात करते करते मैं उनके गाड़ी तक गया और गाड़ी में बैठ के निकल गया। उस दिन मेरे को लगा कि यार भले वो स्क्रीन पे मतलब क्रिकेट मैच में इतना धूम मचाते हैं पर वो इंसान एक नॉर्मल ही है। तो मुझे वो इंस्पिरेशन था कि यार मेरे को भी अगर माही मेरा फेवरेट है, भले वो भी इतना बड़ा है, वो भी ईगो दिखा सकते हैं, पर उन्होंने नहीं दिखाया। तो वो एक लर्निंग लेसन था कि आप कितने भी बड़े बन जाओ बट आप सबके साथ हम्बल रहो, ईगो मत लाओ और सबके लिए अच्छा काम करो। तो मतलब यू वर्क विद सो मेनी एक्टर्स टिल नाउ, सो हुम डू यू फाइंड द मोस्ट लाइक काफ़ी फ्रेंडली है और एकदम दोस्त वाला, या फिर काफ़ी अच्छा रिलेशन जिसके साथ बन गया और काफ़ी फ्रेंडली बात कर सकते हो उनके साथ? मिस्टर अक्षय कुमार। अक्षय सर इज़ लाइक सुपर डुपर फ्रेंडली। बहुत एक्टर्स या कोई भी पर्सनालिटी है जो अगर 6 या 7 घंटा है तो 6 घंटे या 7 घंटे में एटलीस्ट 20 बार अपने फ़ोन को देखेगा कि किसी का मैसेज आया है, किसी का आया है। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन भी 10 मिनट में या 15 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो। 1 घंटा हुआ हम लोग शूट कर रहे हैं, 4-5 बार तो उसको फोन आया इसने चेक किया फोन। अरे मेरे से बताओ अभी जैसे मैं क्यों टेंशन लो तो अरे कोई जैसे में जब तक तूने उन्हें जाया था स्टार्स तो ठीक है, बड़ी बात मतलब। हाँ तो जब मेरे फ़ोन बच सकते हैं इतने, तो वो तो बड़े स्टार हैं, इतना उनका एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म में उनका लाइनअप है, तो ऑब्वियस सीरियस रहने के साथ भी सेट पे इतनी मस्ती मजाक करते रह गए। जैसे एक इंसिडेंट था केसरी पे ही, सर आए, हम लोग गाना शूट कर रहे थे, सानू कैंडी सॉन्ग है जहाँ पे सारे सोल्जर्स गाना गाता है, डांस करते गाना गाता है, एंड इट वॉज अ थिंग विद गणेश आचार्य वॉज अ कोरियोग्राफर। रिहर्सल हो गया, सारा हो गया सब, और सब शॉट ओके हो गया। अब हम लोगों ने कुछ अराउंड 7 o'clock को स्टार्ट किया था और 8:30 9 o'clock तक जितना दिन के अंदर प्लान किया था वो सब लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब सबको ये मूड हुआ यार रोज़ तो इतना धूप में हम लोग सब काम करते हैं और ये कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मतलब अभी जल्दी नहीं जाना है। तो सर ने बोला एक काम कर, बैट और बॉल लेके आ जा, एटलीस्ट कम से कम 30 बॉल्स लेके आओ और क्रिकेट बैट्स लेके आओ। सो लकीली जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर थे उन्होंने हमेशा से ये रखा था, क्रिकेट ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों की यूनिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। अगर 2 डिपार्टमेंट बात नहीं कर रहे, कुछ झगड़ा वगड़ा है,
आप उनके बीच में क्रिकेट खिला बॉन्डिंग बन जाए। So now people are moving from theaters, like from movies to OTT platforms. OTT basically like Hotstar, Z Premiere or Netflix, Amazon, everything like that. तो when you are working in a film, तुमको ऐसा लगता है कि लोग अभी मूवीज छोड़ के OTT पे जा रहे हैं? In aim of a producer or a director is to reach to a maximum audience, and OTT is something that There's a huge audience. Yeah, each and every person has access to a mobile phone. applicable this applications on their phone, and it's easily accessible. So whenever they have a free time, they'll just download it and watch it according to their convenience. Yeah, like what are your future plans for movies or for web series? What are you looking forward to? I'll work as a UPM or a line producer for more. Like UPM, I'll work for more 2 projects and maybe line producer for 3 projects, and post that like in time span of 3 years or maybe 4 years. Like currently I'm of 27, so at age of 33 I'm looking myself as an independent producer. Okay. An independent successful producer who is making a family content. So अभी जहाँ पे है और like back in like FYJC, let's assume FYJC में 10th के बाद ऐसा सोचा था कि अभी जहाँ पे है वहाँ पहुँचना है? मैं चाहता हूँ ये लोगों को कहना, मतलब लोगों तरह के लोग या कोई भी जो टारगेट ऑडियंस जो देख रहा है ये चीज़, उन्हें अपने सबसे पहले तो चीज़ पेरेंट्स से डिस्कशन करना चाहिए। आपको कुछ भी करना है लाइफ में, कुछ भी आपके गोल्स हो या आपको कुछ भी डिसीजन लेना है, सबसे पहले पेरेंट्स, मॉम डैड को ही आपको प्रेफर करना है। नहीं है तो उसके बाद आपके घर में सिस्टर हो या ब्रदर हो एल्डर, उसे पूछिए, सब उनसे सब डिस्कशन करिए। कोई फ्रेंड्स को कुछ मत पूछना पहले, और उनके डिसीजन पे ही फिर आपका लाइफ में डिसीजन लेना। और पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि ये करियर के लिए पेरेंट्स को थोड़ा वैसा होता है कि यार नहीं यार ऐसा, लाइक यू ऑल्सो हैड दैट एक्सपीरियंस के पिक्चर पे काम करने आएगा किधर भी सोना पड़ेगा। अगर आपके पेरेंट्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं यार इसको करना है, ये कर लेगा, उनको अगर आप पेरेंट्स को ही नहीं कॉन्फिडेंस में ले पाए तो आप बाहर की दुनिया किसी को नहीं कर पाओगे। आप पहले अपने लोगों को तो बता दो कि क्या करना है, उनसे टाइम लो 6 मंथ। उन्होंने बोला मैं 1 साल ये चीज़ करूँगा, अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो आप जो बोलोगे वो करूँगा। कुछ तो ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। कभी भी गिव अप मत देना, 100% ट्राई करना, जब तक मतलब ऐसा लगे ना कि हमने मैं कोई भी चीज़ 100% करता हूँ, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, कुछ भी कुछ ढूंढना हो या कुछ लाना हो या कुछ लोकेशन देखना हो, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता कि मैंने 100% दिया है, मैं नहीं छोड़ता, मैं करता ही रहता हूँ वो चीज़। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग भी यही चीज़ फॉलो करें। 100% फॉलो करना चीज़ है, 100% एफर्ट से करना। और जब आप ये सब चीज़ें करते हो तभी किसी का कुछ गलत मत करना, सबके साथ अच्छा रहना। ये मत सोचना कि यार इसको मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, ये कर दूंगा। सबके साथ क्लियर फॉलो करो, सब एथिक्स में रहना, सब क्लियर रखना, सब रिलेशन क्लियर रखना, और सब चीज़ें करते जाओ, 100% देते जाओ, कहीं पे भी रुकना मत। अगर आपको लगे कि किसी से अगर आपका वो ड्रीम है, ये चीज़ आपकी है, आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कैसे उस तरफ पहुँचे, तो आजकल तो मतलब सब सोशल नेटवर्किंग पे होता है, इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन पे है, फेसबुक पे है, उन्हें ईमेल लिखो, आप सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर मी बेसिकली माई एडवाइस इज द मिस्टेक व्हाट आई मेड इन माई कॉलेज डेज इज व्हाट कॉलेज लाइफ इज़ टू एंजॉय कम्प्लीटली। कॉलेज लाइफ ख़त्म करने के बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे और आपको भले आप कॉलेज में कितना भी काम कर लो, प्रोफेशनल लाइफ में आपको 6 महीना तो इंटर्न बनाएगा ही कोई भी, क्योंकि वो लेवल अलग है, ये लेवल अलग है। तो उससे अच्छा आप कॉलेज के 3 साल इतनी मस्ती करो, सब दोस्तों के साथ बाहर घूमो, काम पे फोकस ही मत करो, और TY कंप्लीट होने के बाद ही आप काम करो। छोटी सलाह नहीं आप लोगों को, बेस्ट एडवाइस है। सो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल द 18-year-old आदित्य गांधी कि तभी ऐसा कुछ किया होता तो आज और एक लेवल ऊपर होता शायद, ऐसा कुछ, या जो किया सही किया, क्या मतलब? द थिंग इज व्हाट आई डिड वाज करेक्ट। मैं जो भी यंगस्टर्स हैं उनको बोलूँगा यू जस्टिफाई योर चॉइसेस, अपना कॉल लेना। अगर आपको लग रहा है ये चीज़ आपको करनी है लाइफ में, तो आपके पेरेंट्स को सबसे आगे बोलो कि ये चीज़ है, और उन्हें सही लगे तो, अगर नहीं भी लगता है तो उनसे कुछ टाइम मांग लो कि 6 महीना मुझे करना है, 1 साल करना है। हाँ तो बस ठीक है ना। हाँ आप तो यही तो है भाई। ओके, सो बेसिकली ही विल बी अ प्रोड्यूसर इन नेक्स्ट 5-6 अपकमिंग ईयर्स, और अभी काफ़ी अच्छे उस पर है। तो इफ़ यू आर अ वेंडर, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिसको फिल्म में काम चाहिए या किसी एक्टर से मिलना है, तो इसको मैसेज मत करना क्योंकि ये नहीं मिलवाता है, ठीक है, नहीं काम करवाना है। बट या फॉर श्योर इफ़ यू हैव अ गुड रेज्यूमे, इफ़ यू हैव अ गुड PA, इफ़ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस in the media field, do surely get in touch with him
we'll link his channel, his Instagram IDs, handles and everything below. So people do get in touch with him. अगर छोटा मोटा एक आपका छोटा मोटा अभी क्या बोल सकते हो उसको, छोटा मोटा इंटर्नशिप भी अगर कुछ रहेगा तो वैसे तो कुछ ऐसा काम नहीं किया इसने, हेल्प नहीं किया आज तक, पर आप ट्राई कर सकते हो. छोटा मोटा कोई काम ही नहीं होता हमारे में, सब बड़े काम ही होते हैं. He'll surely help you out. He is a very helpful and a very humble guy. So thank you Aditya for coming on the show and giving us all the gyan. So guys, stay tuned for the next episode. Thank you.